नमस्ते। इस सूचना पर ध्यान दें। आगे जो वीडियो आप देखने वाले हैं उसमें थोड़ी बहुत गालियां और अश्लील बातों का प्रयोग किया गया है। अगर आप किसी भी रिश्ते से मेरे माता पिता को जानते हैं तो कृपया करके अपना मुंह बंद रखने का कष्ट करें और हमारे खुशहाल परिवार में आग ना लगाएं। धन्यवाद। Hi flares! So there has been a question that who the fuck is flares? So basically flares is my fandom name, like my subscribers, my 432 subscribers are named flares. Flares is basically naturally talented, like a god gift talent that we all have in us. I hope you do have one. So okay. So let's get on to the topic. So today's video is going to be a story time about my building mates. So basically, like, I won't elaborate one single story because there has been a lot of stories. So I'll just elaborate some fun moments to, like, have a good content, because मुझे content की कमी हो गई है. I personally used to post K-pop dance covers, singing covers and all that thing, but recently I lost my interest in K-pop. It's not like I'm disrespecting anyone, but I do listen to K-pop. It's not like I'm not listening to K-pop. I do listen to K-pop still, jab man kiya sirf tab. But I have lost, like, the core interest in K-pop. So like now I'm into Doja Cat and stuff like that. Bitch, I said what I said. As I said, I'm not into K-pop that much, like how I used to be, and how I used to create my content, dancing, singing and all that. So now, like, I decided I'll post longer videos, because why not? Story times are fun. I mean, I can post story times about my personal life, not my personal life. I was like, okay, let's go for a longer video wale approach se. I'm so sorry for my subscribers if you don't understand Hindi, but I really want to, speak in a comfortable language. It's not like I'm not comfortable in English or I'm not literate or something, but it's just that Hindi is a more preferable language for jokes and sarcasm. That is why I will be using both. Okay, let's use both. Okay. A few moments later. So I was 3 when we moved into our last home, and I was 16 when we moved out of that home. So basically, if I tell you, I've had a lot of friends, good friends, bad friends. There were a lot of memories. It's not like very nice and all kind of moments. No, it's going to be funny moments that I have experienced, which I would like to share because views milte hain. So I was like very small. I'm still small. What am I talking? Okay, ठीक है. मैं तभी बहुत ज़्यादा छोटी थी, अब मैं सिर्फ बहुत छोटी हूँ. पहले मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी. So like हम लोग जब 10-12 साल के थे, so we used to go out. हम लोग ने ना नया नया बाहर जाना सीखा था कि लाइक हम लोग चिप्स लेने खुद से बाहर जा सकते हैं. लाइक हमारे बिल्डिंग का ये गेट है, ठीक है, यहाँ पर हमारी बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग का गेट है. एंड ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा दूर चल के जाते थे चिप्स लेने के लिए. हम ये बिल्डिंग है हमारी, ये हमारा गेट है बिल्डिंग का. थोड़ा आगे जाओ, यहाँ पर ही किराने वाला है, ठीक है. किराने वाले बेसिकली ग्रोसरी स्टोर्स, लाइक जो छोटे छोटे होते हैं, बनिया और वट एवर यू ऑल कॉल इट. सो हम लोग वहाँ पर जाते थे और हम लोग अपने 10 रुपये लेके जाते थे, ठीक है. सो हम 4 लड़कियाँ थी, ठीक है. उसमें से एक थी मैं, एंड बाकी के 3 का नाम रख देते हैं ABC, ठीक है. हम चारों 10 रुपये लेके बाहर चिप्स खाने जाते थे. और ऐसा नहीं है कि इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है. नो, चारों के क्यूमुलेटिवली मिला के 10 रुपये होते थे. बट फिर भी हम लोग एकदम कॉन्फिडेंस में जा रहे कि भाई आज तो पूरी दुकान खरीद लेंगे, ख़त्म ही है, राज करेंगे. तो हम अपने बिल्डिंग के ये वाले गेट से यहाँ वाले बनिए के पास जा रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं अंकल चिप्स चाहिए. लेस लेने की औकात नहीं थी तभी, क्योंकि लेस तभी सिर्फ 20 रुपये का आता था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. और लेस में इतना मज़ा भी नहीं आता था हमें उस टाइम पे, बिकॉज हम उस टाइम पे पता क्या खाते थे सबसे ज़्यादा? हम लोग खाते थे व्हील्स. फनी तभी नया नया निकला था, स्कूपी टोस एंड ऑल दैट. सो बिकॉज दैट वॉज 5-5 रुपये का. और हमारा दिमाग इतना अच्छा था, और दैट वी थिंक सो, हम क्या करते थे, हम 10 का एक लेस ले सकते हैं,
बट नहीं, हम 10 का एक लेस नहीं लेंगे, हम 5-5 के 2 चिप्स के पैकेट लेंगे। एक हो सकता है बालाजी वाला वेफर और एक हो सकता है कोई भी स्कूपिटोस, फनी, ये सभी बालाजी के, बट यू नो दोस क्रीमी ऑनियन एंड ऑल दैट, सो वी कैन टेक दैट। तो हम ऐसे करते करते 2 पैकेट्स लेते थे, ठीक है, 10 रुपये में हम लोग 2 पैकेट्स लेते थे। और हमने जब ये 10 साल वाला जब भी जैसे ही फेज खत्म हुआ, सो व्हेन वी एंटर्ड आवर लाइक यू नो 12 इयर्स, वो प्री टीन वाला एज, वी स्टार्टेड गोइंग थोड़ा और आगे। एंड हम लाइक बिल्डिंग का गेट 1 ईयर वाला, थोड़ा और आगे जाओगे तो देयर इज़ अ, आई कुड से देयर इज़ अ बिल्डिंग जिसके वहाँ पर हम लोग मतलब सब लोग वहाँ पर हैंग आउट करते हैं, बट इट्स नॉट सच अ गुड प्लेस, बट वी यूज टू गो कि लाइक ओह 10 रुपये है हमारे पास, 4 लड़कियाँ एक चिप्स के पैकेट के लिए जा रही हैं, लिटरली दैट डज नॉट इवन मेक सेंस, बट या। एंड यू नो व्हाट, अगर हमें रास्ते में जाते वक्त अगर हमें कोई अपना स्कूल फ्रेंड मिल जाता था तो हम क्या बोलते थे, कहाँ जा रहे हो यार, तुम लोग इस तरह से देखा नहीं है, वी आर बिजी, वी आर गोइंग आगे खाने के लिए। बहन चिप्स लेने जा रही है, बोल देना, उससे ना तेरा पेट भरेगा ना मेरा पेट भरेगा। भाई उस पैकेट में 4 चिप्स आते थे, बड़े वाले, ठीक है, जिसमें से सपोज ए ने 1 चिप्स उठा लिया, बी ने 2 चिप्स उठा लिए, सी ने 1 चिप उठा लिया, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। वाओ, उसमें किसी का पेट नहीं भरता था, लेकिन हम बोलते क्या थे, वी आर एक्चुअली बिजी, वी आर गोइंग आउट टू ईट। बहन तू चिप्स का पैकेट लेके ना घर पे जाने वाली है वापस। व्हाट डू यू मीन वी आर गोइंग आउट टू ईट? बट हाँ, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बचपन से है, तगड़ा वाला। बाद में जाके मैच्योर हुए तो ऑब्वियसली माँ बाप जाने देते थे कि लाइक ओके यू वांट टू गो देयर, बता के जाना सो हमें करना पड़ता था। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, हमारे बिल्डिंग में ना वो एक टॉक्सिक, यू नो आई थिंक ये सबके ही बिल्डिंग में एक एक बार हुआ है कि वो एक टॉक्सिसिटी का माहौल बनता है जब बॉयज स्टार्ट टू ग्रो एंड ऑल्सो द गर्ल्स स्टार्ट टू ग्रो। सो पेरेंट्स, स्पेशली द पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स, दे टेल देयर चाइल्ड दैट अभी तुम लड़कों के साथ खेलना बंद कर दो। क्यों? व्हाट इज सो रॉन्ग इन दैट? ये तो गलत बात है। सो इवन मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया था, मेरी बिल्डिंग में सारी लड़कियों के माँ बाप ने ये बोला था कि क्योंकि लड़के होते ही हरामी हैं, स्पेशली वो जो 12 से लेके 16 साल वाले, 16 भी नहीं 17 साल वाले, 12 से लेके 17 साल के लड़के जो हमारी बिल्डिंग में थे वो सब इतने हरामी थे। और ये एज में सारे लड़के हरामी होते हैं। मेरा खुद का एक बड़ा भाई है, ठीक है, सो आई नो इट, मैंने भी देखा है, ठीक है। सो सॉरी भैया, बट या सो हमें लड़कों के साथ खेलना मना कर रहा था। एंड आई वाज लाइक पापा आप भी तो एक लड़के हो, मेरा एक बड़ा भाई है। एंड देन मैं मतलब सुनती नहीं थी इतना कि लाइक पापा ने लड़कों के साथ खेलने मना किया एंड ऑल दैट, बट वी यूज्ड टू स्टिल टॉक एंड ऑल दैट। बट बाकी जो लड़कियाँ थी दे यूज्ड टू बी लाइक नहीं यार मम्मी, फिर मम्मी ऊपर से देखेगी तो फिर वो घर में रख लेगी। गर्ल, योर डैड इज अ बॉय, कोई बात नहीं, होता है। बट हाँ, अनदर थिंग, मतलब ये क्या होता था कि मैं घर पे पानी की बोतल भूल गई, या तो मैं जानवरों की तरह इतना से भाग रही थी, मैंने पकड़ा पकड़ी खेली, मैंने साकली खेली, मैंने रिले खेला, मैंने रनिंग रेस खेला, मैंने सब कुछ खेला है। अब मुझे प्यास लग रही है तो मैं घर पे जा रही हूँ, मैं घर पे पहुँची, मम्मी ने दरवाज़ा खोला, टाइम देखा 7:30 हो रहे, मैं सिर्फ पानी पीने आई थी, बंद हो गया दरवाज़ा। अब मैं नीचे जा नहीं सकती दूसरी बार। क्यों? क्या किया था मैंने ऐसा? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा बचपन छीना है मेरे माँ बाप ने मेरे से। मेरे को पानी पीते टाइम रख लेते थे घर पे। ये गलत है, ये गलत है। यही तो बात है। सॉफ्ट पेरेंटिंग करनी चाहिए। पानी पी के बच्चों को वापस से भेज दो। पेरेंट्स, इफ यू आर वॉचिंग दिस, डोंट डू दिस विथ योर किड। मेरी तरह हाल हो जाता है फिर। कोई बात नहीं, होता है। अच्छा, वी ऑल नो दैट हर किसी के बिल्डिंग में ना एक कपल होता है। दिस इज गोइंग टू बी गुड। भाई वो एक कपल ना, मतलब कॉन्फिडेंस है भाई तुम में कि तुम बिल्डिंग में आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हो। आए हाय हाय, यहाँ पर चाटा पड़ेगा, ऐसा बता रही हूँ मैं। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। तो हमारे बिल्डिंग में भी ऐसे सीन्स हुए थे कि लाइक यू नो कपल्स है एंड ऑल नॉट। कॉन्फिडेंस तो इतना होता है ना इन लोग के अंदर कि मतलब बाजू से शीला आंटी जा रही है और ये हाथ पकड़े चल रहे हैं। आए हाय, हालांकि उसकी मम्मी है वो,
आई जस्ट मेक अ स्टोरी बिकॉज आई कांट यूज नेम्स पर्टिकुलरली. सो अब होता यूँ था कि लाइक ये कपल है, सपोज राज एंड सिमरन बिल्डिंग में हाथ पकड़ के चल रहे, बस रैंडमली वॉक कर रहे. हमारी बिल्डिंग में तो साथ में लड़का लड़की को खेलना अलाउड नहीं था, ये तो हाथ पकड़ के चल रहे. आय हाय हाय, ये परवरिश की तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी. शिट. और आंटियों को ना ऐसा कुछ ये नहीं था कि अपने काम से मतलब रखो, नहीं, हम बालकनी से ऐसे करके देखेंगे. सिमरन गुप्ता, राज शर्मा. एंड देयर वाज दिस वन टाइम जब सिमरन की मम्मी ने उसको पकड़ लिया था कि शिट, ये तो शर्मा आंटी का बेटा है. एंड द वर्स्ट थिंग इज कि वो जो एक ग्रुप होता है ना माता पिता का, उस ग्रुप पे उन्होंने डाल दिया कि गुप्ता जी, आपकी लड़की और हमारा लड़का हाथ पकड़ के बिल्डिंग में घूम रहे थे. वाई दिस यूज्ड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ केओस, क्योंकि अब जो सिमरन ने किया है उसका भी भुगतान मैं अपने घर पे भुगत रही हूँ कि बेटा तुम सिमरन के साथ क्यों रहती हो. लाइक मम्मी मुझे तो पता भी नहीं था. सिमरन ने 1 महीने से अपना रिलेशनशिप मुझसे छुपाया. अब मैं पहले सिमरन के साथ कलेश करूंगी, फिर मैं आपको आके एक्सप्लेन करूंगी. क्या ये बदतमीजी सिमरन, शर्म नहीं आती तुझे? शर्मा जी का बेटा, शी, छुछुंदर दिखते थे सब. Have you ever noticed कि fuck boys, play boys वही लोग होते हैं जिनकी शक्ल ही नहीं होती? He is a total fuck boy. ना शक्ल है बंदे के पास, ना अकल है बंदे के पास. मतलब घमंड किस बात का है? और इसको लग रहा है कि मैं इसको देख रही हूँ. चूती होते हैं लड़के भाई. अब ये जो ग्रुप चैट पे हो गया, उसके वजह से मेरे भी घर में केओस है और सिमरन के तो घर में कलेश चल ही रहा है. तो मेरी मम्मी मेरे से क्वेश्चन पूछ रही है कि बेटा तुम सिमरन के साथ क्यों रहती हो, क्योंकि सिमरन तो ये सब गंदी हरकतों में. रिलेशनशिप इक्वल्स टू गंदी हरकतें. ये होने के बाद अब ग्रुप चैट पे तो वो हो ही गया है. अब वापस इन दोनों का नीचे आना बंद हो जाता है. पूरा समर वेकेशन में सिमरन का वेट कर रही हूँ, लड़के राज का वेट कर रहे हैं. दोनों आने को तैयार नहीं है क्योंकि दोनों के माँ बाप ने उनको घर पे बैठा दिया है. सिमरन प्रोबेबली बर्तन घस रही है और राज प्रोबेबली वीडियो गेम खेल रहा है. पेट्रियार्कल सोसाइटी. अब ये मत बोलना कि मैं भी ये सब प्रमोट कर रही हूँ. सो अभी रिसेंटली मैं अपनी एक दोस्त से मिलने अपने पुराने बिल्डिंग में गई थी. सो मैंने देखा भाई मेरी पुरानी बिल्डिंग में बच्चे इतने चूतिए हैं. हमारी बिल्डिंग में ना एक ऐसा है कि ट्रेंड बेसिस पे चलता है जो भी चलता है. लास्ट ईयर तक हमारी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा बैडमिंटन खेल रहे थे कि पूरा टूर्नामेंट ही रखवा लिया था. ठीक है, ये साल हमारी बिल्डिंग में क्रिकेट का टूर्नामेंट रखवाया. एंड क्योंकि अभी क्रिकेट चल रहा है, वर्ल्ड कप, IPL एंड ऑल दैट चल रहा था, इस वजह से. सो अभी चल रहा है, IPL चल रहा था. सो उस टाइम पे जब मैं गई थी, सो देयर इज दिस चाइल्ड 7th स्टैंडर्ड में. वो बच्चा, इतनी तो बुद्धि होगी कि भाई, अब मैं बताती हूँ उसने क्या किया. अपने सिर्फ लेफ्ट हैंड पे, सिर्फ एक ही हाथ पे, ठीक है, अपने लेफ्ट हाथ पे उसने पेपर बांधा है. ठीक है, पेपर को ऐसा लिटरली ऐसा फोल्ड किया है और उसको एक रबर बैंड के थ्रू इधर से बांधा है. मतलब भाई तू 7th में है, कॉमन सेंस यूज कर कि उससे कुछ नहीं बचने वाला है. और ऐसा भी नहीं है कि उसको डर है कि उससे बॉल से लग जाएगा. हमारी बिल्डिंग में सब लोग स्पॉन्ज बॉल से खेलते हैं. लिटरली ना रबर की बॉल अलाउड है, ना टेनिस बॉल्स अलाउड है, कुछ अलाउड ही नहीं. इवन इफ इट्स सॉफ्ट टेनिस, इट्स नॉट अलाउड. सब लोग स्पॉन्ज बॉल से खेलते हैं. और ये स्पॉन्ज बॉल के लिए यहाँ पर गार्ड लगा के रहे. वो भी गार्ड किसका बना हुआ है? पेपर का. भाई थोड़ा तो मतलब इतने एबनॉर्मल बच्चे लाते कहाँ से ये लोग. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, क्या बोलूँ अब मैं इसको. शिट भाई. One single. Can you please shut the fuck up? It's so irritating. Okay. I like doing that on purpose. I was about to speak, okay? Okay, so that is it for today's video. I'll see you guys in the next one. Video को like करना, channel को subscribe करना, and comment down your best stories so that I can laugh on your moments as well. Bye. Thank you. Adios amigos.